प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते। उस टाइम तो मेरे पास इंस्टा था ही नहीं। Miss Aviksha, as you cleared NEET in your first attempt. Hello everyone, welcome to the very first episode of my podcast Talk with Babes. Today we have a very special guest with us, my dear friend Miss Aviksha Datta, who is currently in third year MBBS and who cleared NEET 2021 in her first attempt. She is an honors candidate with distinction in second year subject and she is an amazing writer with almost 1 million views on her Quora and she writes beautiful stories and beautiful poetry. So let's quickly get to know more about her NEET days and college life as well. So welcome Miss Aviksha. थैंक यू। How is college life? इट इज गोइंग ऑल राइट। उतना भी अच्छा नहीं है जितना एक्सपेक्ट किए थे, पर ठीक है, चलता है उतना। We do have a series of questions and आपको वो सब आंसर करना है। श्योर। Okay. The first question is your source of preparation. कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी कैसे किया था? दोनों किया था। कोचिंग तो 11th स्टैंडर्ड में आकाश में एनरोल हुए थे और 12 में लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम आवर सेल्फ स्टडी के लिए ही देना पड़ा था, तो ऐसे ही हुआ। 12 में तो आकाश ऑनलाइन हो गया था, तो तब कोचिंग का उतना बड़ा रोल नहीं था। 11 में बहुत अच्छा मोटिवेशन और कोचिंग का बहुत अच्छा रोल था प्रिपरेशन में। Second question, books that you followed, modules, test series. Initially, I followed Akash modules in 11th standard, and then in 12th standard also I followed to some extent, but I started giving more importance to NCERT. So, I think both were helpful in its own way. And other than that, I didn't follow any extra books. NCERT, I think it is the main book to focus on. So Miss Aviksha, as you cleared NEET in your first attempt, so how many hours did you study? I maintain one rule that I should study minimum 4 hours of self-study, and that should be the most effective 4 hours of study. Other than that, the time spent in coaching, nearly the whole day was spent in studying. I took some breaks, but I think 4 hours of self-study was must for me. Okay, rest aside hours of studies, how many hours did you sleep? I was very particular of sleeping for minimum 6 hours. I think अगर आप सही अमाउंट में नहीं सोओगे तो फिर उसके बाद आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा। आगे आपको पढ़ना है, इतना सारा चीज़ मेमोराइज करना है, इतना यूज़ करना है कैलकुलेशन में, तो मिनिमम 6 hours of sleep. Or you can sleep for 6 to 8 hours. I maintain that 6 to 8 hours of sleep, especially before your exams. You should just take proper rest. So sleep and study तो होता रहता है, बट ये जो डिस्ट्रैक्शन है जो आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मेनली ये रील्स वाला जो कंटेंट अभी आ रहा है, तो इसको आप कैसे मैनेज करती थी उस टाइम? उस टाइम तो मेरे पास इंस्टा था ही नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग के पास स्मार्टफोन नहीं रहता है जो लोग कोटा में जाते हैं, तो मुझे लगता था मेरे पास स्मार्टफोन है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग रिलैक्सेशन टाइम दे ही सकते हैं। तो हम जैसे कि इंट्रोडक्शन में ही बोला गया, आई वॉज अ कोरा राइटर, सो आई वॉज अ कोरा रीडर दैट टाइम. So I used to read about the different aspirants' life of doctors in Quora and YouTube. Other than that, Insta वगैरह उतना यूज़ नहीं करते थे। सोशल मीडिया तो नहीं था उतना। व्हाट्सएप में ही बात होता था फ्रेंड्स लोग से कभी कभी। As I have already said कि हर चैनल is going to reach almost 1 million views, तो जाओ जल्दी से जाओ, आप रीड करो उनका आंसर्स, बहुत अच्छा वे में लिखा है इन्होंने, तो मैं इनका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन्होंने सही बोला है कि वो जो डिस्ट्रैक्शन होता है, आप चाहो तो फ़ोन को एक अच्छे यूज़ में भी लगा सकते हो या फिर ख़राब यूज़ में भी लगा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ओनली। सो विद दिस माई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेस्ट डिड यू गिव एंड आपका मतलब एवरेज मार्क्स कितना था, फर्स्ट में क्या मार्क्स आया था एंड लास्ट मार्क्स कितना था? I think I am not a much good example related to tests, but still I have realized that the marks of the test doesn't matter much.
क्योंकि 11 के स्टार्टिंग में मुझे 500 में मार्क्स आता था। अपने सेंटर में तो अच्छा लगता था, बट ओवरऑल हमको लगता था हम बहुत बिहाइंड है बाकी बच्चों से। फिर 12 में और कम हो गया, 400s में आने लगा। फिर और एंग्जाइटी होने लगा कि इतना कम आ रहा है, कैसे नीट क्रैक होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना कभी छोड़े नहीं और अपना मिस्टेक्स पे फोकस करते थे कि मार्क्स डजेंट मैटर, वो मार्क्स क्या क्या क्वेश्चन में लॉस हुआ तो उसको फोकस करते थे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है हेल्प हुआ है मेरा। तो पहला टेस्ट में तो 500, लास्ट क्लास में टेस्ट थोड़ा सा देना भी बंद कर दिए थे, डिमोटिवेटिंग लगता था कम मार्क्स आने से। तो 400 में आता था। तो आप कैसे हैंडल करती थी ये जो कंपैरिजन है लोगों से, खुद का कैसे आप हैंडल करती थी? मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ दैट सबका अपना अपना पेस होता है जाने का। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्पीड से जाओगे जिस स्पीड से बाकी लोग जा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाते थे टेस्ट सेंटर में, पर फिर उन लोगों का नहीं हुआ। तो ये होता है ना, मेन डे नीट के एग्ज़ाम डे में आप कैसा माइंड लेके आप देते हो सकता है आप पूरा टाइम पूरा प्रिपेयर किए, लेकिन एकदम डी डे में आके आप जाके पूरा एंग्शियस हो गए, फिर आप सही क्वेश्चन भी गलत करने लग जाते हो। तो पीस ऑफ माइंड लेके आपको अपने स्पेस में जाना, आपको अपने आप को बोलना है कि आप कर सकते हो। बाकी लोग का बहुत किसी का होता है नहीं होता है चांस, तो वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है। PYQ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो आप PYQs कहाँ से सॉल्व करते थे? PYQ तो मैं वो हम लोग का मॉड्यूल्स में भी दिया रहता था, और साथ में अरिहंत का कुछ बुक्स आता था जिसमें पूरा 20 ईयर्स PYQ, बहुत लोग और भी ज़्यादा ईयर्स का PYQ सॉल्व करते हैं। तो मैं वो सबसे करती थी। और मैं एक और चीज़ कि मैं OMR शीट का जेरॉक्स ले लेती थी और सीधा डायरेक्टली OMR शीट में प्रैक्टिस करती थी बबलिंग करके। इससे आपका बहुत सारा बबलिंग के टाइम बहुत एरर्स होता है कि एक क्वेश्चन स्किप हो गया, ये सारा चीज़ आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हो। और साथ में पूरा 3 आवर्स जो होता है उसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है, बबलिंग करना, क्वेश्चन देख के करना। तो OMR शीट शुरू के दिन से ही आपको फिल करना चाहिए, चाहे वो टेस्ट में हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही हो, क्योंकि जब लास्ट के टाइम पे आपको बस OMR शीट का प्रैक्टिस करना रहता है, उतना कम समय में आपको समझ नहीं आएगा कि OMR में भी आपका क्या क्या गलती हो सकता है। शुरू से ही OMR फिल करना शुरू कर दो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many revision did you? When it comes to NCERT, I made sure that while we were taught that chapter in our coaching, I would read that chapter first. फिर टेस्ट के पहले एक बार रीड करते थे। जनरली कोचिंग में उतना फोकस नहीं करते ये रीडिंग में, कोचिंग में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते शुरू से, तो NCERT लगता है कि यूजलेस है, क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूल ही पढ़ लेते हैं। पर एक बार रीडिंग लगा लो फिर शुरू से आदत पड़ जाएगा। 12 में आई इंक्रीज माई फ्रीक्वेंसी ऑफ रीडिंग NCERT. So I think you should have a target that you should study it more than 10 times, even more. The more you read, the more you will realize हर बार कुछ नया मिलेगा NCERT रीड करते वक्त, और उसको अंडरलाइन करते रहिएगा एज यूजुअल। तो ऐसे बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा NCERT। कोई टाइम, कोई लिमिट नहीं है कि हो गया अब खत्म हो, NCERT कभी खत्म ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि NCERT कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन से सब्जेक्ट में NCERT छोड़ा भी जा सकता है? पहले तो मुझे लगता था कि NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ने से भी चलेगा, बायो में इम्पॉर्टेंट है। पर फिर जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगे NCERT में, तब मुझे लगा कि इसमें भी बहुत कुछ है, और क्वेश्चंस भी धीरे धीरे आने लगा फिजिक्स केमिस्ट्री से। अभी तो पूरा NCERT बेस्ड आता है क्वेश्चन, तो अंदर भी कोई टेबल के नीचे स्टार मार्क करके कुछ लिखा हुआ है तो पता चलता है क्वेश्चन में भी वो आ गया। मतलब वो ढूंढना पड़ता है हर वक्त कि इससे प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन का, तो पढ़ते वक्त ही ध्यान में रखना है कि यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। तो आपने एग्जाम के कितने दिन पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? मुझे लगता है 2 मंथ्स मैंने मतलब सिर्फ रिवीजन ही किया था। वैसे तो टाइम लग जाता है कंप्लीट करने में, पर जैसे जैसे फास्ट कंप्लीट करो, ताकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। 2 मंथ्स पहले से रिवीजन एकदम कंप्लीट कर लो। आप टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करती थी? लाइक बहुत लोगों का तो हर हफ्ते में टेस्ट होता है, एंड बैलेंसिंग दैट विद द करेंट सिलेबस जो क्लास में चल रहा होता है, उसको करते करते बैकलॉग बहुत ज़्यादा बना रहता है।
तो टेस्ट और बैकलॉग दोनों को कैसे मेंटेन करती थी? वैसे तो मेरा भी उतना मेंटेन नहीं होता था बैकलॉग, लेकिन टेस्ट के पहले ना जब तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स बना लिया करो। एकदम शॉर्ट, सबसे सुपर शॉर्ट, एक पेज में पूरा चैप्टर का नोट्स बनाने की कोशिश करो। जैसे फिजिक्स का सारा फॉर्मूला एक पेज में, और कोई इंपॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन में बार बार पूछता है तो वो सब एक पेज में पूरा नोट कर लो। तो टेस्ट के पहले सिर्फ वो पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो और टीचर जो नोट्स देते हैं अगर वो यूज़फुल लग रहा है आपको तो वो भी आप पढ़ लिया करो। हर बार मतलब मॉड्यूल में जाने का टाइम नहीं रहता है, तो छोटा एकदम शॉर्टेस्ट वे में पढ़ो, ताकि डी डे के पहले भी तो नीट के पहले भी तो एक दिन पहले आपको पूरा रिवाइज करना पड़ता है। तो ऐसे रिविजन स्पीड रखो कि एक दिन में हो जाए सब। शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले नोट्स आपको हर एक चैप्टर के लिए, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तो आपको फॉर्मूले नोट्स बना के ही रखना चाहिए, क्योंकि टेस्ट कल है एंड आप अभी पूरा चैप्टर खोज खोज के नहीं देख सकते कहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ। तो बस मैं भी यही करती थी, फॉर्मूला देख कर जाती थी एंड नेक्स्ट डे में टेस्ट देकर आ जाती थी। तो ऐसा बहुत सारा चैप्टर्स रहा होगा जिनमें आपको वीकनेस लगती थी एंड बहुत डिफिकल्ट लगता था आपको, तो उन चैप्टर्स को कैसे आप? वैसे डिफिकल्ट चैप्टर्स होता था स्पेशली 12 में जब ऑनलाइन कोचिंग हो गया था, तो तब समझ नहीं आता था। तो जो चीज़ समझ नहीं आता ना उसको बार बार अलग अलग बुक से ट्राई करना चाहिए। स्पेशली फिजिक्स में जैसे आपको नहीं समझ आ रहा है, डीसी पांडे, इसी वर्मा, ये सब सॉल्व करो और सॉल्यूशन ऐसा जगह रहे, आंसर की रहे, वैसा आप सॉल्व करो। फिर नहीं मिल रहा है आंसर, बार बार करो, कोई टीचर से पूछ लो, पर उस चैप्टर को छोड़ मत दो कि बाद में देख लेंगे, डिफिकल्ट है। उसके पीछे पड़े रहो तो वो खुद ही तुम्हारा पीछा पड़ना छोड़ देगा। क्या आपको लगता है कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए? मुझे लगता है बायो एक ऐसा है कि गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सारा एनसीईआरटी से आता है। तो बायो तो रेगुलर पढ़ना चाहिए और उसका उस पे रैंक भी होता है डिसाइड, तो वो इम्पोर्टेंट है। और फिजिक्स में मतलब मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि वो वीकनेस ना बन जाए तुम्हारा। और केमिस्ट्री तो मिडिल में आता है दोनों के, तो वो भी करना पड़ेगा, तीनों को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, पर बायो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So with this we end the NEET wala part. Now let's begin. How is your college life going? First year, second year, third year? Just एक brief सा बता दीजिए। वैसे तो फर्स्ट ईयर में शुरू में आके बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मेडिकल कॉलेज में फाइनली पहुंच गए, पर वहाँ भी चैलेंजेस होता है। पर कोई नहीं, इट इज़ कहा जाता है ना कि क्राइंग इन एमबीबीएस इज़ बेटर देन क्राइंग फॉर एमबीबीएस, तो वही खुद को बताते रहते हैं। फर्स्ट ईयर में तो पूरा एकदम सब स्ट्रेंज लगता है, कुछ पता नहीं पैटर्न कैसे पढ़ना है। सेकेंड ईयर तक थोड़ा पता चलता है। अभी थर्ड ईयर में कुछ खास कंप्लेन नहीं है पढ़ाई से, पर ऐसे में चल रहा है सब कुछ। डिफ़िकल्टीज से ही तो स्ट्रांग बनेंगे, तो वही एक्सेप्ट कर ले रहे। सेकेंड ईयर में हम लोग का पहला फ्रेशर्स था, तो उसमें भी बहुत सीनियर्स से मिले थे। तो हर बार न्यू लोगों से मिलते रहते। मेडिकल कॉलेज में है कि बहुत स्ट्रेंथ है, तो बहुत न्यू लोग हैं, बहुत मिलने का अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इंट्रोवर्ट होने से आप एम्बिवर्ट बन सकते हो, मतलब आप बात कर सकते हो, और आपको बात करना ही पड़ेगा क्योंकि बाद में फ्यूचर में कम्युनिकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत हेल्प आता है। फिर आप कॉन्फिडेंस भी गेन कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे सब परफॉर्म करे कॉलेज में, चाहे उन्हें उतना एक्सीलेंट आता भी नहीं हो तो भी कर रहे। तो इससे आप और परफॉर्म, मतलब आप और थोड़ा सा स्पोकन पर्सन बनोगे। तो पहले तो स्कूल में जैसे हम लोग मैक्सिमम टाइम बुक्स में रहते थे, अभी यहाँ आके आप थोड़ा ग्रो करोगे अपना अदर एस्पेक्ट्स में। तो ये सब एंजॉय करते हैं ये प्रोसेसेस। थर्ड ईयर में तो अभी न्यू न्यू आए हैं, सब्जेक्ट्स थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर कोई नहीं, चलेगा। थर्ड ईयर थोड़ा फ्री टाइम भी, अभी हम लोग फेस्ट ऑर्गेनाइजर्स है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। ऑल्सो द बेस्ट थिंग जो आपको यहाँ पर लगा वो क्या है? लाइक मेरे लिए तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा चीज़ जो मिला वो दोस्त ही है। तो आपके लिए क्या बेस्ट रहा इधर? फ्रेंड्स तो मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हमको भी मिले। और अदर देन दैट हमको यहाँ का थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा लगा। जैसे यहाँ पे उतना ज़्यादा केओस नहीं है सिटी लाइफ का, उतना भी अच्छा नहीं है ये, पर अच्छा लगता है कि केओस नहीं है, बिजी लाइफ नहीं है। फिर यहाँ पे जो लोग हैं इस एरिया में वो लोग भी अच्छे हैं, तो ये सब अच्छा है। और यहाँ पे मुझे
अपना पीस मिला है कि पीसफुली हम अपना रूम में अपना सारा काम कर सकते हैं। So lastly, if you would like to give any advice to the new juniors and जो भी ये वीडियो को देख रहे हो, तो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? जूनियर्स, आई वुड लाइक टू से कि नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ जस्ट डिफरेंट। और डिफ़िकल्ट चीज़ को पसंद करना सीख जाओ। डिफ़िकल्ट चीज़, बोरिंग चीज़, वो सब पसंद करना सीख जाओ। फिर लगेगा कि अब वो डिफ़िकल्ट है ही नहीं, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा सब कुछ। खास करके पढ़ाई में जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसी के पीछे पड़े रहो तो अच्छा लगेगा। और हाँ, ओवरऑल जो मेडिकल में एक और चीज़ है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम सारा सब्जेक्ट्स ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ही पढ़ के गए, तो सारा सब्जेक्ट्स को ही पढ़ना है, इक्वल अटेंशन देना है। और एन्जॉय करो, हॉबीज़ रखो, अपना हॉबीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त तो पढ़ाई नहीं होगा तुमसे। इनफैक्ट 2 आवर्स भी सेल्फ स्टडी कर लियो तो बहुत है। उसके बाद हॉबीज़ रखने से ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको, बोर नहीं फील होगा। तो सो थैंक यू सो मच अभिक्षा, आपसे हम्म, बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने मिला होगा हमारे जूनियर्स को, ऑडियंस को। तो ऐसा और वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है कि आप ही आए या फिर कोई और आए, बट वी वुड डेफिनेटली like to know more about you as well. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. I hope you liked it.